تصور کریں ایک ایسا شہر جہاں زندگی عروج پر تھی، لوگ روشن مستقبل کے خواب دیکھ رہے تھے، لیکن کسی نے سوچا تھا کہ 26 اپریل 1986 کی وہ خاموش رات ان کی زندگی کا وہ آخری سکون بھرا لمحہ ہوگا۔ رات کے 1:23 پر جب پورا سوویت یونین گہری نیند سو رہا تھا، چرنوبل نیوکلیئر پاور پلانٹ ری ایکٹر نمبر 4 نے ایک ایسی چنگاری چھوڑی جس نے پوری دنیا کی نیند اڑا دی۔ یہ صرف ایک فیکٹری کا حادثہ نہیں تھا، یہ انسانی تاریخ کا وہ کالا دن تھا جس نے ہواؤں میں زہر بھر دیا۔ آخر اس رات وہاں ہوا کیا تھا؟ کون ذمہ دار تھا اس تباہی کا؟ اور کیسے ایک ضد نے پورے یورپ کو موت کے دہانے پر کھڑا کر دیا؟ آج ہم اس ویڈیو میں اس حادثے کو تفصیل سے جاننے کی کوشش کریں گے۔ وکس ٹی وی اسٹوڈیو کی ویڈیو میں آپ کا دل سے ویلکم۔ یہ حادثہ یوکرین کے کیپٹل کیو سے 100 کلومیٹر دور پریپیٹ سٹی میں ہوا تھا، جو آج پوری طرح سے انسانوں سے خالی ہے۔ یوکرین بھی اس وقت آزاد نہیں تھا، یہ سوویت یونین کا حصہ تھا۔ سوویت یونین نے نیوکلیئر انرجی کا استعمال کرتے ہوئے کئی سارے پاور پلانٹس تیار کر لیے تھے، جن میں سے ایک چرنوبل بھی تھا۔ یہ پلانٹ 4 نیوکلیئر ری ایکٹر پر مشتمل تھا، جنہیں 1، 2، 3 اور 4 کے نام دیے گئے تھے۔ یہ 4 نمبر والا سب سے آخر میں بنا تھا اور اسی سے تباہی کی شروعات ہوئی تھی، جو چرنوبل نیوکلیئر ڈیزاسٹر کے نام سے جانا جاتا ہے۔ اس تباہی کو سمجھنے کے لیے پہلے ہمیں اس شیطان کو سمجھنا ہوگا جو اس ری ایکٹر کے اندر قید تھا۔ دوستو، نیوکلیئر پاور پلانٹ بجلی بنانے کے لیے ایک بہت ہی طاقتور ذریعہ ہے۔ ری ایکٹر کے بالکل درمیان میں ہوتا ہے کور، جہاں یورینیم کا استعمال کیا جاتا ہے۔ ان ایٹمز کے اندر ایک عظیم طاقت چھپی ہوتی ہے۔ جب ایک چھوٹا سا نیوٹران یورینیم کے ایٹم سے ٹکراتا ہے تو وہ ایٹم ٹوٹ جاتا ہے، اسے کہتے ہیں نیوکلیئر فیشن۔ جب ایٹم ٹوٹتا ہے تو 2 کام ہوتے ہیں، پہلا بہت ساری ہیٹ پیدا ہوتی ہے اور دوسرا مزید 2 یا 3 نیوٹرانز نکلتے ہیں۔ اب یہ نکلنے والے نیوٹرانز اگلے ایٹم سے ٹکراتے ہیں اور یہ سلسلہ چلتا رہتا ہے، اسے کہتے ہیں چین ری ایکشن۔ اگر اسے کنٹرول نہ کیا جائے تو یہ صرف کچھ سیکنڈز میں ایک ایٹم بم بن سکتا ہے۔ لیکن اس سے کنٹرول کیسے کرتے ہیں؟ یہاں آتے ہیں کنٹرول روڈز۔ یہ روڈز بوران اور سلور جیسے مٹیریلز کے بنے ہوتے ہیں جو نیوٹرانز کو اپنے اندر جذب کر لیتے ہیں۔ انہیں آپ ری ایکٹر کے بریکس سمجھیں۔ اگر ری ایکٹر بہت گرم ہو رہا ہو تو ان روڈز کو کور کے اندر ڈال لیا جاتا ہے تاکہ وہ نیوٹرانز کو سوکھ لیں اور ری ایکٹر ٹھنڈا ہو جائے۔ اگر مزید پاور چاہیے ہو تو روڈز کو باہر نکال لیا جاتا ہے۔ اس پورے پروسیس کا مقصد صرف ایک ہے، پانی کو اتنا گرم کرنا کہ وہ اسٹیم بن جائے۔ پھر وہی اسٹیم ایک بڑے ٹربائن کو گھماتا ہے اور بجلی پیدا ہوتی ہے۔ چرنوبل کا RMB کے ری ایکٹر ایک بہت ہی کمپلیکس مشن تھا، لیکن اس میں ایک بہت بڑی ٹیکنیکل خرابی تھی جسے اس رات کسی نے بھی سیریسلی نہیں لیا تھا۔ اب کہانی میں وہ دن آتا ہے 25 اپریل 1986۔ ری ایکٹر نمبر 4 کو روٹین مینٹیننس کے لیے بند کیا جانا تھا، لیکن بند کرنے سے پہلے انجینئرز کو ایک آخری سیفٹی ٹیسٹ مکمل کرنا تھا۔ یہ ٹیسٹ دکھنے میں بہت معمولی تھا، انہیں صرف یہ دیکھنا تھا اگر بجلی چلی جائے تو کیا پلانٹ کے گھومتے ہوئے ٹربائنز اتنے پاور دے پائیں گے کہ کولنگ پمپس تب تک چلتے رہیں جب تک ڈیزل جنریٹرز اسٹارٹ نہیں ہوتے۔ دوپہر کے تقریباً 2 بجے ٹیسٹ شروع ہونے والا تھا۔ انجینئرز نے ری ایکٹر کی پاور کم کرنا شروع کر دیا، لیکن تبھی کیو کے گرائیڈ کنٹرولر کا فون آتا ہے۔ انہوں نے کہا، رک جائیں، ہمیں ابھی بجلی کی ضرورت ہے، آپ ری ایکٹر بند نہیں کر سکتے۔ یہاں سے تباہی کا کاؤنٹ ڈاؤن شروع ہوتا ہے۔ ٹیسٹ کو 10 گھنٹے روک دیا گیا۔ ان 10 گھنٹوں نے بڑے مسئلے پیدا کیے۔ پہلا مسئلہ، ری ایکٹر کے اندر زینان نام کا ایک گیس بننا شروع ہو گیا۔ یہ گیس نیوٹرانز کو کھا جاتا ہے، یعنی یہ ری ایکٹر کے لیے ایک زہر کی طرح تھی جو اس کی پاور کو دبا رہا تھا۔ دوسرا اور سب سے بڑا مسئلہ، انسانی تھکاوٹ، جو ڈے شفٹ اس ٹیسٹ کے لیے ایکسپرٹ تھے اور مہینوں سے اس کی تیاری کر رہے تھے، ان کی ڈیوٹی ختم ہو چکی تھی۔ رات کے 12 بجے نائٹ شفٹ آئے۔ ان لوگوں کو اندازہ ہی نہیں تھا کہ ٹیسٹ کیسے کرنا ہے۔ انہیں صرف آخری منٹ پر ایک پیپر تھما دیا گیا جس پر کئی جگہ انٹروڈکشنز کاٹ کر دوبارہ لکھے گئے تھے۔ نائٹ شفٹ کے سپروائزر تھے اناٹولی ڈیاٹلو۔
डियाटलव एक सख्त मिजाज और जिद्दी इंसान थे। जब उन्होंने देखा कि रिएक्टर के पावर जीनान की वजह से तेजी से गिर रहे हैं तो उनके सुपरनेट्स ने मशवरा दिया कि टेस्ट को रोक देना चाहिए, ये बहुत खतरनाक है। लेकिन डियाटलव ने उनकी ना सुनी। उन्होंने चीख कर हुक्म दिया, पावर ऊपर लेकर जाओ, टेस्ट हर हाल में आज ही होगा। उन्हें मालूम नहीं था कि वो सोते हुए शेर को जगा रहे हैं। रिएक्टर की पावर इतनी गिर गई कि वो बंद होने के करीब था। अब इसे मुर्दा रिएक्टर को जिंदा करने के लिए उन्होंने वो गलती की जो न्यूक्लियर साइंस में गुनाह समझे जाते हैं। उन्होंने रिएक्टर के सारे ब्रेक्स यानी वो कंट्रोल रोड्स बाहर निकालने का फैसला किया। रात के 1:23 हो चुके थे। कंट्रोल रूम में लगे हुए मॉनिटर्स पर खतरे की वार्निंग चमक रही थी। कंप्यूटर बार बार सिग्नल दे रहा था कि रिएक्टर अनस्टेबल है, लेकिन डियाटलव के जिद के आगे सब मजबूर थे। अब उस मंजर को तस्वर करें, रिएक्टर के अंदर यूरेनियम के एटम्स तेजी से टूट रहे थे क्योंकि ऑपरेटर्स ने तकरीबन सारे कंट्रोल रोड्स बाहर निकाल लिए थे, इसलिए न्यूट्रॉन्स को रोकने के लिए कोई नहीं था। रिएक्टर के कोर में हीट इतनी तेजी से बढ़ी कि वहाँ मौजूद पानी जो रिएक्टर को ठंडा रखने के लिए होता है वो उबलकर स्टीम बन गया। यहाँ टेक्निकल मसला पैदा हुआ। पानी न्यूट्रॉन्स को रोकता है लेकिन स्टीम न्यूट्रॉन्स को नहीं रोकता। जिससे पानी स्टीम बना, न्यूट्रॉन्स की रफ्तार और ज्यादा तेजी से बढ़ गई। रिएक्टर अब एक प्रेशर चोकर बन चुका था जो फटने के करीब था। 1:30:40 पर सीनियर ऑपरेटर अकीमो ने देखा कि हालात हाथ से निकल चुके हैं। उसने चिल्लाते हुए AZ-5 बटन दबाया। ये इमरजेंसी किल स्विच था। इसका मकसद ये था कि सारे कंट्रोल रोड से एक साथ रिएक्टर के अंदर चले जाएं और न्यूट्रॉन्स को ख़त्म कर दें। लेकिन यहाँ किस्मत ने सबसे बड़ा मजाक किया। इन रोड्स का डिज़ाइन फ्लॉड था। रोड्स के निचले हिस्से पर ग्रेफाइट लगा हुआ था। जैसे ही रूट्स अंदर गए, उनका ग्रेफाइट हिस्सा पहले रिएक्टर में दाखिल हुआ। ग्रेफाइट ने न्यूट्रॉन्स को रोकने के बजाय उन्हें मजीद तेज कर दिया। सिर्फ 1 सेकंड के लिए पावर अपनी नॉर्मल हद से 100 गुना ज्यादा हो गया। पहला धमाका हुआ। रिएक्टर के 1000 टन भारी चित्त को तिनके की तरह उड़ा दिया। उसके फौरन बाद एक बहुत बड़ा धमाका हुआ। ये कोई आम धमाका नहीं था, ये रिएक्टर के दिल के फटने की आवाज़ थी। रिएक्टर की छत फट चुकी थी और हवा में रेडियो एक्टिव के ग्रेफाइट और यूरेनियम के टुकड़े बारिश की तरह बसने लगे। रात के अंधेरे में रिएक्टर से एक नीली रोशनी आसमान की तरफ जाने लगी। ये आयोनाइजिंग रेडिएशन थी। लोगों को लगा शायद सिर्फ आग लगी है। उनको अंदाज़ा नहीं था कि उनके सामने मौत का दरवाज़ा खुल चुका है। रेडिएशन इतनी ज़्यादा थी कि उसे मुयस्सर करने वाले मिशंस तक मैक्सिमम पर जाकर अटक गए थे। असल में रेडिएशन उससे हज़ारों गुना ज़्यादा थी, लेकिन कोई मानने को तैयार नहीं था। धमाके के फौरन बाद प्लांट में हर तरफ आग लग चुकी थी। लोकल फायर स्टेशन से गाड़ियां निकल चुकी थी। इन फायर फाइटर्स की क़यादत वाइसिली अकनादेगो कर रहे थे। जब वो प्लांट पर पहुंचे तो उन्हें लग रहा था ये एक सिर्फ रफ फायर है, लेकिन वहां आग से ज़्यादा खतरनाक दुश्मन था जो दिखाई नहीं दे रहा था। रेडिएशन। जमीन पर ग्रेफाइट के टुकड़े बिखरे हुए थे जो रिएक्टर के कोर से निकले थे। एक फायर फाइटर के ड्राइवर ने एक टुकड़ा उठाया और सिर्फ कुछ ही सेकंड्स में उसका हाथ बुरी तरह जल चुका था। उन फायर फाइटर्स के पास कोई सेफ्टी गियर नहीं था। वो सिर्फ अपने मामूली लिबास से मौत से लड़ रहे थे। सिर्फ 1 घंटे के अंदर उन्हें उल्टियाँ होने लगी और उनकी स्किन का रंग बदलने लगा। इन लोगों ने अपनी जान की परवाह किए बगैर आग बुझाई ताकि रिएक्टर नंबर 3 तक आग ना पहुंचे, क्योंकि अगर वो फट जाता तो पूरा यूक्रेन हमेशा के लिए खत्म हो जाता। प्रीपेड की वो सुबह, अगली सुबह 26 अप्रैल को प्रीपेड के शहर के लोग उठे तो उन्हें सब कुछ नॉर्मल लग रहा था। बच्चे, स्कूल के लोग काम पर गए, लेकिन हवा में एक अजीब सी धात जैसे सुकून महसूस हो रहा हो। हुकूमत ने अभी तक किसी को कुछ नहीं बताया था। लोग उस ब्रिज ऑफ डेथ पर खड़े होकर प्लांट से निकलने वाला नीला धुआं देख रहे थे, बेखबर कि वो हर सांस के साथ अपने अंदर मौत को खींच रहे हैं। हादसे से 36 घंटे बाद जब स्वीडन में रेडिएशन डिटेक्ट हुआ और दुनिया ने सवाल उठाए, तब जाकर सोवियत यूनियन ने कबूल किया कि
कुछ बड़ा हुआ है। 27 अप्रैल के दोपहर को 1200 बसों का काफिला प्रीपेड पहुंचा। शहर में ऐलान हुआ, रेडिएशन की वजह से आपको सिर्फ 2-3 दिन के लिए बाहर निकाला जा रहा है। अपना ज़रूरी सामान और दवाएं साथ ले लें। 50,000 लोग अपने घर, अपनी यादें वही छोड़कर बसों में बैठ गए। उन्हें लग रहा था कि वो वापस आएंगे, लेकिन आज 40 साल गुजर चुके हैं, उनमें से कोई वापस नहीं जा सका। प्रीपेड एक जिंदा शहर से एक घोस्ट टाउन में बदल गया, लेकिन खतरा अभी टला नहीं था। रिएक्टर के नीचे पानी भरा हुआ था और ऊपर से पिघला हुआ लावा नीचे गिर रहा था। अगर वो पानी से टकरा तो एक ऐसा थर्मल एक्सप्लोशन होता जो आधे यूरोप को राख बना देता। यहाँ मौत के मुंह में धकेले हुए 3 जांबाज लोग, अलेक्सी अनानाइको, वलेरी पेजपालोव और बोरिस बरानफ, ये लोग रेडियो एक्टिव पानी के अंदर गए ताकि मैन्युअली वाल्व खोलकर पानी को निकाल सकें। इन्हें पता था कि ये इनका आखिरी सफर हो सकता है, लेकिन उन्होंने करोड़ों लोगों की जान बचा ली। उनके बाद 6 लाख लिक्विडेटर्स को बुला लिया गया, जिन्होंने पूरे इलाके की मिट्टी साफ की और जानवरों को मारा ताकि जहर ना फैले। तबाही के कुछ महीने बाद जब आग ठंडी हुई और मौत का ध्यान भटका, तो सवाल ये था कि इस खुले हुए रिएक्टर का क्या किया जाए। इसमें से लगातार अभी भी रेडिएशन निकल रही थी। हुकूमत ने फैसला किया कि रिएक्टर नंबर 4 को हमेशा के लिए एक डोम में बंद किया जाए। हजारों मजदूरों ने अपनी जान को खतरे में डालकर लोहे और कंक्रीट का एक अजीम शान दीवार बनाया, जिसे सर्कोफेगस कहा जाता है, लेकिन ये सिर्फ 30 साल के लिए था। 2016 में दुनिया भर के मुल्कों ने मिलकर एक नया और मजबूत लोहे का गुंबद बनाया, जो अगले 100 साल तक इस जहर को कैद रखेगा। आज अगर आप चेर्नोबिल के एक्सक्लूशन जोन में जाएं, तो वहाँ एक अजीब सी खामोशी मिलती है। प्रीपेड शहर, जो कभी 50,000 लोगों का घर था, आज दरख्तों और झाड़ियों से ढक चुका है। स्कूलों के क्लासरूम में आज भी किताबें बिखरी हुई हैं। अम्यूज़मेंट पार्क का वो मशहूर झूला फरीस व्हील आज भी वही खड़ा है, लेकिन अब वहाँ सिर्फ जंग की आवाज़ आती है। किस्मत ने अजीब खेल दिखाए, जहाँ से इंसान निकल गया वहाँ कुदरत वापस आ गई। आज वहाँ ऐसे जानवर मिलते हैं जो पूरे यूरोप में कहीं नहीं मिलते। वॉल्स और हिरन और भी कई जानवर वहाँ पे आज़ादी से घूमते हैं। कुदरत ने दिखा दिया कि वह इंसानी तबाही के बाद भी खुद जिंदा रह सकता है, लेकिन इंसान के लिए वो मिट्टी आज भी जहर है। चेर्नोबिल का हादसा सिर्फ एक टेक्निकल फेल नहीं था, यह इंसानी अना, झूठ और निज़ाम की गलतियों का नतीजा था। अगर DIA-12 जिद ना करता, अगर रिएक्टर का डिज़ाइन बेहतर होता, या अगर हुकूमत वक्त पर सच बोल देती, तो शायद हज़ारों जानें बच सकती थी। ये कहानी हमें याद दिलाती है कि टेक्नोलॉजी जितनी भी ताकतवर हो जाए, वो हमेशा इंसानी हाथों में होता है। एक छोटी सी लापरवाही सदियों की तबाही ला सकती है। आज भी वहाँ की मिट्टी में रेडिएशन मौजूद है और साइंटिस्ट के मुताबिक वहाँ दोबारा इंसानों के रहने के लिए हैरत अंगेज तौर पर 20,000 साल का वक्त चाहिए। चेर्नोबिल एक मौत का निशान नहीं, बल्कि एक सबक है। एक सबक के हमें कुदरत के हदूद और टेक्नोलॉजी के हदूद का एहतराम करना चाहिए। दोस्तों, अगर वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करें और कमेंट में बताएं कि क्या इंसान को न्यूक्लियर एनर्जी पर भरोसा करना चाहिए या नहीं। मज़ीद ऐसे ही वीडियोस देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। मिलते हैं अगली वीडियो में।